नमस्ते। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ्स बताए थे। यस, तो चलिए आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस पे, और ये भी सीखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ग्राफ से सॉल्व करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू यूजिंग इक्वेशंस जो हम काइनेमेटिक्स 1 में पढ़ के आए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेक्चर। और एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आई एम प्रोवाइडिंग VT ग्राफ फॉर मोशन ऑफ ए पार्टिकल। सो दिस इज VT ग्राफ। Okay, this angle is theta, or I'll give numbers here. See, let us consider this to be 4, this to be 2, this to be -4, this as 4, and this as 5. T is measured in seconds and V is measured in meter per second. तो क्वेश्चन लिख लीजिए, velocity time graph for a particle moving in straight line is given. Remember, VT graph path नहीं बताता, path आपको XY या YZ या ZX इस टाइप के ग्राफ बताएंगे, ग्राफ्स बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मोशन ऑफ पार्टिकल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां हमें क्या पता है? हमें बताया जा रहा है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 seconds means at t equal to 2 velocity becomes 0 and it remains 0 for next 2 seconds, means from t equal to 2 to t equal to 4 velocity remains 0, means particle is at rest for that part of time. Now particle after 4 t equal to 4 particle की जो velocity है वो नेगेटिव हो जा रही है और वो बढ़ रही है। इसका मतलब t equal to 0 से t equal to 2 तक particle पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। for 2 seconds t equal to 2 to t equal to 4 particle रेस्ट पे है, and from t equal to 4 to t equal to 5 particle लेफ्ट में मूव कर रहा है with increasing velocity, and at t equal to 5 इसकी velocity 4 हो जाती है towards left. okay, और यूज नेगेटिव डायरेक्शन। सो डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए। फर्स्ट पार्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। ओके, सो यहाँ मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। So let us consider this is t equal to 0. T equal to 0. Particle is having velocity 4 meter per second, moving in straight line. Yes. Up to t equal to 2. T equal to 2, and at t equal to 2, velocity becomes 0. Particle remains here till t equal to 4. So t equal to 2 to t equal to 4 particle is here only, rest is at rest. Now from t equal to 4 particle is returning. Okay, this is t equal to 4, here v is 0, and now particle has changed its direction of motion, and particle is somewhere here. This is t equal to 5, and at this moment particle has 4 meter per second in this direction. सो ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। आप इसे वर्ड्स में लिख लीजिए। आई होप आपको ये पार्ट समझ गया है। अब बात करते हैं, अभी डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि मोशन कैसी है। इज इट यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन? सो फॉर दैट लेट अस सी VT ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। यस, सो मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। फॉर दिस पार्ट मीन्स फ्रॉम 0 to 2 seconds, 2 to 4 particle is at rest, 4 to 5 again graph is a straight line at some slope. Yes, so here again it is uniform acceleratory motion. Now let us check whether accelerations are same or different.
ओके, सो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 seconds, what is happening? Particle is moving with constant acceleration, means motion is UAM. Okay, let us find the value of acceleration in this particular part here. So इसके लिए मुझे slope चाहिए होगा. So acceleration I am calling say A1, it will be slope of Vt. So स्लोप निकालने के लिए आपको ये एंगल लगेगा, तो मान लीजिए एंगल आपका θ1 है, तो स्लोप किसके इक्वल? स्लोप तो ये वाले एंगल का tan थीटा होता है, तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे कि आपकी जो स्लोप है वो माइनस ऑफ tan ऑफ θ1 है. यहाँ पे इस एंगल का नेगेटिव आएगा क्योंकि ये दिस इज द एक्चुअल एंगल जो कि स्लोप में यूज होगा. सो आप क्या लिख पाएंगे यहाँ पे? tan ऑफ थीटा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, इट इज 4 डिवाइडेड बाई 2, so it is -2. So acceleration here is minus of 2 meter per second square, and it is justified also. See why? From t equal to 0 to t equal to 2, velocity is positive, particle is moving towards right. Yes, and velocity is decreasing 4 to 0, so acceleration must be negative. So here acceleration is in left, and how much? It is 2 meter per second square. अब मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी लेफ्ट दिखा दिया है, इसलिए माइनस नहीं लगा रहा हूँ. सो फॉर मी आई एम कंसिडरिंग दिस right positive and left negative. This is the convention I am taking here. Okay, now from t equal to 2 to t equal to 4, particle is at rest. Third, t equal to 4 to t equal to 5, जहां तक मुझे ग्राफ दिया गया है. Yes, so again Vt graph is a straight line, so I will say particle is moving with constant acceleration. या तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख दे रहा हूं मोशन कैसी है. मोशन इज UAM, मोशन इज UAM. लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन. सो मान लीजिए एक्सेलरेशन इज A2, वो भी आपकी स्लोप ऑफ Vt के इक्वल आएगा. अब आप स्लोप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो आपकी ये जो लाइन है इसे आप एक्सटेंड करेंगे. यस, ये जो एंगल बन रहा है इट विल डिटरमाइन द स्लोप. तो आप देख लीजिए स्लोप तो नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगा. बट अगर आप देख लें तो ये एंगल अगर हम निकाल लें, से इट इज θ2, देन स्लोप विल बी माइनस ऑफ tan θ2. स्लोप, सो स्लोप माइनस ऑफ tan θ2, सो इट विल बी माइनस ऑफ व्हाट इज दिस 10. ये हाइट कितनी है आपके पास यहाँ पे? 4. दिस हाइट इज 4 एंड दिस बेस इज 1, सो इट इज 4 by 1. So how much I get? I get minus of 4 meter per second square this acceleration. So acceleration is still negative in this part. So I write here the acceleration A2 is 4 meter per second square. See, in this part from 4 to 5 velocity is negative. Yes, acceleration is also negative. That's why velocity is increasing from 0 to 4. So यहाँ पे आप एक और part add कर सकते हैं. And t equal to 0 to t equal to 2, here velocity is positive, acceleration is negative, that's why velocity is decreasing. In this part you can see velocity is what? Negative. Can check. वेलोसिटी नेगेटिव है इस पार्ट में, आप v की वैल्यूज निकाल सकते हैं, Vt ग्राफ है. देन हियर एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव, इट इंप्लाइज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल. तो ये सारी बातें जो हम पहले भी डिस्कस किए हैं वो यहाँ से देखी जा सकती है. तो आप समझ गए इसकी मोशन कैसी हो रही है. ठीक है, मेरा अगला पार्ट है यहाँ पे फाइंड displacements and distance traveled. Displacement and distance traveled 0 to 2, 2 to 4, 4 to 5 तीनों में. ठीक है, तो चलिए देखते हैं.
तो सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं निकाल के रखा हूं यहाँ पे, जो मुझे मिला है -2, ठीक है, और इस पार्ट का एक्सेलरेशन हमें मिला है -4। तो इन्हें अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ का एक्सेलरेशन आया है अपने पास -2 और यहाँ का एक्सेलरेशन आया है -4। चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूं मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल में। दिस डिस्प्लेसमेंट आई कॉल इट S1। तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप इक्वेशन से जाइए या ग्राफ से जाइए। तो सपोज आप इक्वेशन से जाते हैं, फर्स्ट वे आई एम यूजिंग इक्वेशन, सो इट इज UAM। आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू 2 सेकेंड्स है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 से 2 में जा रहे हैं, तो 0 पे वेलोसिटी कितनी है इसकी 4, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, दिस इक्वेशन S इज इक्वल टू U डेल्टा टी प्लस हाफ A डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट है S1, U इज 4, डेल्टा टी इज 2 प्लस हाफ A इज -2 और यहाँ 2 का स्क्वायर। सो आप 2 से 2 कैंसिल करा लीजिए, तो आपको मिल रहा है 8 - 4, so you are getting 4 meters. So this is S1 is equal to 4 meter you got by equation. Now the graphical approach, तो आपको याद दिला दूं कि एरिया enclosed between the VT graph, time axis and the time limits क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहां से कहां निकाल रहे हैं, 0 से 2 सेकेंड्स में। तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, एक टाइम लिमिट 0 है, दूसरी टाइम लिमिट 2 है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एरिया इनक्लोज्ड है, दिस एरिया आई कॉल दिस एरिया टू बी A1। तो ये एरिया आपके किसके इक्वल आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के। सो दिस इज मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट हियर। सी, सो हियर आई एम यूजिंग ग्राफ। तो मैं जानता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT, जिस भी इंटरवल में निकाल रहे हैं। तो अपन 0 से 2 में निकाल रहे हैं, तो दैट एरिया इज A1। अबव द एक्सिस एनक्लोज हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। सो एरिया आप फटाफट लिख सकते हैं, ट्राइंगल है हाफ, बेस इज 2, हाइट इज 4, सो यू आर गेटिंग 4 मीटर। इजंट इट इजी टू राइट फ्रॉम द ग्राफ? यस। सो दिस इज बेटर अगर हमें ग्राफ दिया है और हम एरिया निकाल पा रहे हैं तो। अच्छा, अब 2 to 4 की बात कर लेते हैं। T इक्वल टू 2 to T इक्वल टू 4 डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी तो रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 ही है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या ही रहेगा, 0 ही रहेगा। फिर तीसरा T इक्वल टू 4 to T इक्वल टू 5, इसे भी आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक पार्ट दिया है, मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी एंड एक्सेलरेशन इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सो सी, अब यहाँ पे आप डेल्टा टी की वैल्यू आपको रेडीमेड 1 मिल जाती है, 1 सेकेंड मिल जाती है, 5 - 4 इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका इनिशियल मूवमेंट 4 है। कैन यू टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी एट T इक्वल टू 4? ये तो VT ग्राफ ही है, तो y एक्सिस पे आपको वेलोसिटीज ही लिखी हुई है। सो 4 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है, 0। सो U इज 0। ओके, एक्सेलरेशन आपके सामने है, डिस्प्लेसमेंट को मैं S3 बोल दे रहा हूँ। तो मेरा जो S3 है वो कितना निकल के आ जाएगा, U डेल्टा टी प्लस हाफ A डेल्टा टी का होल स्क्वायर। सो पहला टर्म 0 प्लस हाफ A की जगह -4 और डेल्टा टी 1। सो आई एम गेटिंग दिस डिस्प्लेसमेंट टू बी -2 मीटर। दिस इज बाय इक्वेशन। ओके, दिस इज बाय इक्वेशन एंड बाय ग्राफ ऑल्सो, यू अंडरस्टैंड। तो इसी में मैं बाय ग्राफ बता दे रहा हूं। तो ये हमने इक्वेशन से सॉल्व किया, दूसरा इसी को मैं ग्राफ से बता रहा हूं। तो ग्राफ से मुझे पता है मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो -A3 के इक्वल आएगा, अगर मैं इस एरिया को A3 बोलता हूं। But this area is enclosed below the time axis, so नेगेटिव आना चाहिए, वो मैंने लगा दिया A3 के आगे माइनस। अब ये भी ट्रायंगल बन रहा है, इसकी हाइट 4 है, लेंथ वगैरह में हम माइनस नहीं यूज करेंगे, इसकी हाइट 4 है और बेस 1 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, S3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सो बेस इज 1, height is 4, so you are getting -2 meter. So you can use either way, you can either use the graph or use the equation। और अगर ग्राफ उसने ऑलरेडी दिया है तो ग्राफिकल मेथड इज बेटर देन द इक्वेशंस। ओके, वेल, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फ्रॉम 0 to 5। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो टोटल
displacement, that is from t equal to 0 to t equal to 5. So you will add all the displacements, you will write s1 plus s2 plus s3, whatever plus minus के साथ वो है, तो वो है आपके पास plus of 4 plus of 0 minus of 2. So how much you get the total displacement? You get 2 meter positive. अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आप दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते थे यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए? यू कैन यूज द ग्राफिकल अप्रोच. यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू द एरिया A1 प्लस दूसरा एरिया जो है उसे माइनस के साथ लिखते हैं, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाता. A1 इज 4, A3 इज 2, उसमें माइनस होता तो 4 minus 2 2 मीटर, तो ये आपको दे देता टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ ग्राफिकली. ओके, नेक्स्ट पार्ट आई एम आस्किंग टू यू इज डिस्टेंस. Okay, here next part is distance. So distance traveled. अब रेक्टिलिनियर मोशन है, तो फर्स्ट पार्ट जहां पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है उस पार्ट में डिस्टेंस कितनी है? तो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 डिस्टेंस कितनी आ रही है आपके पास? डिस्टेंस आ रही है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विच इज हाउ मच? 4 मीटर. Yes, and t equal to 2 to t equal to 4 बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो डिस्टेंस 0 आ रही है. एंड फ्रॉम t equal to 4 to t equal to 5 डिस्टेंस में आपको मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड ऑफ माइनस how much it was? 2. Yes, minus 2. So mod of minus 2, it is 2 meters. What is total distance? If I ask total distance to you, तो कितनी निकल के आएगी total distance? तो total distance traveled in the total time will be just summation of these distances. तो आपको कितना मिलेगा? ये 6 मीटर. अब इस डायग्राम में भी समझ सकते हैं आप, यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट आपका S1 है, कितना है ये? 4 मीटर. यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट आपका S2 है, ये भी कितना है? 2 मीटर, और डायरेक्शन इज डिफरेंट. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो ये है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट. दिस इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट S. डिस्टेंस आपको पार्ट वाइज ऐड करनी पड़ेगी. सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कि हाउ वी डिस्क्राइब द मोशन, हाउ कैन वी फाइंड डिफरेंट पोर्शंस फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ. नाउ माय क्वेश्चन हियर इज, next part in this same question is plot displacement time graph. First ST graph, second speed time graph, third acceleration time graph. आपको 3 ग्राफ्स मुझे बना के देने. So plot position time, then speed time, एंड आखिरी आपको प्लॉट करना है एक्सेलरेशन टाइम. आपको पता है पोजीशन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम एक ही जैसे आते हैं, सिर्फ इनिशियल पोजीशन का फर्क है. समझते हैं कैसे प्लॉट करेंगे हम. So here I have the graph, the velocity time graph we have here. ओके, सी सबसे पहला ग्राफ में प्लॉट करने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम, देन वी विल सी पोजीशन टाइम. एसटी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. एसटी ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि किस टाइप की मोशन कहां हुई है. तो ये आप पहले ही कैटेगराइज करके रख लीजिए. टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 मोशन जो है वो UAM है, ठीक है, विथ acceleration is equal to 2 meter per second square. T equal to 2 to T equal to 4, it is rest. T equal to 4 to T equal to 1, it is again UAM with acceleration here minus of 4. So this information is very important to plot displacement time. अब
डिस्प्लेसमेंट टाइम हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा आपका, t इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला, ठीक है। और एक्सेलरेशन डिसाइड करता है उस पैराबोला की कॉन्केविटी, और वेलोसिटी डिसाइड करती है स्लोप ऑफ टेंजेंट्स कैसी होंगी। सो अब पैराबोला समझिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मेरे पास वेलोसिटी कैसी है अभी इस पार्ट में? पॉजिटिव है, तो मुझे ऐसा पैराबोला ड्रॉ करना है जो कि कॉन्केव डाउनवर्ड हो और उसकी जो स्लोप है वो कैसी आए? पॉजिटिव। तो सपोज मेरे पास ये चॉइसेस थी, कॉन्केव डाउनवर्ड पैराबोलाज मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, दोनों कॉन्केव डाउनवर्ड है, ठीक है। अब कौन सा चलेगा मुझे? तो मैं इस पर स्लोप कहीं भी टेंजेंट बना के देखूंगा। देखिए ये जो टेंजेंट मैंने बनाई है इसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव? पॉजिटिव आ रही है। इसके लिए टेंजेंट अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी स्लोप कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। मेरी वेलोसिटीज कैसी है? पॉजिटिव है, फ्रॉम 0 to 2। सो आई नीड ए पैराबोला व्हिच इज कॉन्केव डाउनवर्ड बट हुज स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आर positive, means tangents are making acute angle with positive direction of x axis. So मैं कौन सा पार्ट रिजेक्ट कर दूंगा यहाँ पे? So I'll reject this portion here. So which one will left? This one. So first part आपका जो है ग्राफ का वो आ गया ये, this parabola which is opening upward. कहां तक जाएगा ये? It will go till t इक्वल टू 2, ठीक है। दिस इज t इक्वल टू 2, और आपको पता भी है कि यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया था? इट वाज 4 डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, आप कैलकुलेट कर चुके हैं। 2 to 4 बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब इसी पोजीशन पे पड़ी हुई है। सो विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, नो इंक्रीमेंट इन डिस्प्लेसमेंट, yes, straight line. Then this is again a parabola, but ये पैराबोला भी आपका कैसा आना चाहिए? ओपनिंग डाउनवर्ड आना चाहिए कि नहीं? ओपनिंग डाउनवर्ड के साथ साथ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स नेगेटिव आनी चाहिए, एग्री? सो ओपनिंग डाउनवर्ड बट स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव, सो डिस्प्लेसमेंट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो इस तरीके का पैराबोला आप चेक कर लीजिए। देखिए मैं आपको टेंजेंट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी टेंजेंट बनाऊँ इस पैराबोला पे, तो ये टेंजेंट ऐसी बन रही है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, इसकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप चेक कर लीजिए, टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। तो यहाँ वेलोसिटीज पॉजिटिव है, यहाँ वेलोसिटीज नेगेटिव है। यस, दोनों ही पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, मतलब दोनों जगह के एक्सेलरेशंस कैसे हैं? नेगेटिव है। हालांकि आप एक्सेलरेशंस वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम। सो दिस इज व्हाट यू हैव। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द ग्राफ यू गेट फॉर। अच्छा, मैंने एक गलत पॉइंट बता दिया है आपको कि 5 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो मेरा 5 पर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो रहा है बच्चों, 5 पर डिस्प्लेसमेंट मेरा 2 है। सो सी हियर, so halfway I need to draw. So t equal to 5 पर डिस्प्लेसमेंट 2 है, so बॉडी यहां तक ही जा रहा है, and here slopes you can check. Okay, so this is my डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला। आप मेंशन भी कर दें, दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बात आती है, एक और ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर बात करूं तो पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। Now, can you find initial position from VT graph? Answer is no. You cannot find initial position from VT graph. वो आपको क्वेश्चन में दी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलता हूं से
ये सपोज गिवन है आपको, इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट से position x equal to 3 meter, then find, draw position time graph. तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना है, आपको इस एंटायर ग्राफ को शिफ्ट कर देना है कितनी यूनिट से, 3 यूनिट से। तो मैं दिखा रहा हूं आपको क्या दिखेगा पोजीशन टाइम। ये मेरा टाइम है, 0 है, यहां पे 3 है। ओके, अब आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, एज इट इज रहेगा वही पैराबोला, देन स्ट्रेट, देन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये आपका t इक्वल टू 2 है, t इक्वल टू 4 है, t इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो पूरा ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा, पैराबोला टिल t इक्वल टू 2, देन स्ट्रेट टिल t इक्वल टू 4। ठीक है, एंड देन अब कहां तक आएगा ये नंबर, आप समझिए नंबर कितना हो गया, ये 4 था पहले, 3 आपने इसे ऊपर शिफ्ट कर दिया पूरा, तो 4 विल बिकम 7, और ये जो 2 वाला पॉइंट है इट विल बिकम 5। तो आपका यहां पे सिर्फ कहां तक ही जाना चाहिए ग्राफ, 5 तक। सो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ, द पोजीशन टाइम। तो अंतर सिर्फ कितना, ये ग्राफ ही आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया कितनी यूनिट से, जब आप शिफ्टेड बाय 3 यूनिट्स, क्योंकि इनिशियल पोजीशन मैंने कितनी दे दी आपको, 3। अगर इनिशियल पोजीशन में बोल देता है कि वो रीजन पर ही है, तो ये दोनों ग्राफ एक जैसे दिखाई देते। ठीक है, सो दिस इज योर पोजीशन टाइम। ओके, नेक्स्ट, हालांकि मैंने पूछा नहीं है पर मैं अभी आपसे बोल रहा हूं, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम। अब डिस्टेंस, ये रेक्टिलिनियर मोशन है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती। आप समझिए, कैलकुलेशंस में भी मैंने आपको बताया कि 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक डिस्प्लेसमेंट 4 हुआ था, 2 to 4 में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, मतलब ओवरऑल 4 ही रहा, और 4 to 5 में डिस्प्लेसमेंट -2 हुआ। ठीक है, 2 से डिक्रीज हुआ, यानी 4 की पोजीशन से आप किसकी पोजीशन पे आ गए, 2 की पोजीशन पे। सो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में 2 हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां डिक्रीज किया है। तो यहां तक की बात करें तो डिस्टेंस भी 4 ही रही है, t इक्वल टू 4 तक डिस्टेंस भी 4 आई थी, अभी मैंने लिखा था लास्ट पार्ट में। पर यहां पे डिस्टेंस -2 की बजाय +2 आई थी। सो 2 डिक्रीज करने की बजाय 2 इंक्रीज कर रहा होगा। देन हाउ टू प्लॉट, सो टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम, फर्स्ट प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये रेक्टिलिनियर मोशन के लिए बता रहा हूं मैं, और वही आपको सीखना है। ठीक है, सो डिस्टेंस टाइम, सबसे पहली बात, डिस्टेंस ना तो नेगेटिव होती है और ना ही डिस्टेंस डिक्रीज करती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं, ये मेरे लिए 2 है, ये 4 है, और यहां पे 5 है। सो हियर आई एम प्लॉटिंग displacement time graph. ओके, कुछ इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको मिल गया। नंबर्स भी लिख लीजिए, ये नंबर्स आपके पास 2 और ये नंबर आपके पास 4। ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम फर्स्ट प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम। नाउ जहां जहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या फिर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है यानी 0 है, सो वहां पे आप ग्राफ को वैसे ही छोड़ दीजिए। जहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव या डिक्रीज कर रहा है वहां पे डिस्टेंस तो इंक्रीज ही कर रही होगी। तो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका यह है, आप मिरर इमेज बना दीजिए कौन से पोर्शन की, जो पोर्शन डिक्रीज कर रहा है। सो इसकी मिरर इमेज अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो ये 2 नीचे होने की बजाय कहां पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 से 2 ऊपर यहां। ठीक है, और ये अब कितना डिस्टेंस आपको दिखने लगेगा,
6 टू ऊपर, और ये पोर्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा. So what is distance time? This is distance time. Parabola, straight, and then this blue graph. This blue is representing distance time. Okay, so this is my overall distance time. I hope आपको समझ में आ गया. तो क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस टाइम प्लॉट करने के लिए? डिस्प्लेसमेंट टाइम और इसके किस पोर्शन की मिरर इमेज लेनी है आपको? जो पोर्शन डिक्रीज कर रहा है ग्राफ में, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती. तो ये मिरर की तरह ट्रीट करिए, जैसा ये नीचे है वैसा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा. कोई आपत्ति आई थिंक इसमें आपको नहीं होनी चाहिए. ऑलराइट, वेल नाउ अगला ग्राफ मैं आपसे पूछ रहा हूं स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ मतलब स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या होना चाहिए? सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. आपको कौन सा ग्राफ दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है. सो हाउ विल यू प्लॉट स्पीड टाइम? बहुत ही इजी है. स्पीड डिक्रीज कर सकती है, स्पीड जीरो रह सकती है, स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं. तो जहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव है स्पीड वहां भी कैसी रही होगी? पॉजिटिव. तो नाउ यू हैव टू टेक द मिरर इमेज ऑफ विच पोर्शन ऑफ ग्राफ? द पोर्शन विच इज नेगेटिव. ओके, सो इसके लिए आपको कौन सा ग्राफ ही वापस से लगने वाला है? यू विल नीड VT ग्राफ ओनली. सो आई एम गोइंग टू प्लॉट द VT ग्राफ हियर. सो दिस इज 4, दिस इज -4. ये ब्लैक से आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ. अब क्या करेंगे आप? जो नेगेटिव पोर्शन है उसकी मिरर इमेज ले लेंगे. तो ये नीचे 4 जा रहा है, ये ऊपर 4 चला जाएगा. ठीक है. सो व्हाट विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ देन? दिस विल बी स्पीड टाइम ग्राफ. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड. यहां भी वैसे ही है, यहां भी आप इसको पूरा ब्लू बना लीजिए. तो जब आप अपने नोटबुक में नोट करें तो 2 ग्राफ बनाए. एक में कन्वर्जन दिखाते हुए बनाए कि मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट किया, फिर उसके कैसे डिस्टेंस बनाया वो दिखा दे. फिर एक फ्रेश डिस्टेंस टाइम दिखाएं. अब डिस्टेंस टाइम में ये पोर्शन दिखाने की जरूरत आपको नहीं है. वैसे स्पीड टाइम ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ये है ब्लू लाइंस. तो कैसे प्लॉट किया हमने स्पीड टाइम? आई होप आप समझ पा रहे हैं. आप ये 2 पॉइंट नोट कर लें. To plot distance time, take mirror image of portion of displacement time graph which is decreasing or negative with respect to a line parallel to time axis. तो मैंने मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट लिया, यहां पे मिरर इमेज टाइम एक्सिस के अबाउट ही लिया. वैसे ही दूसरा पॉइंट लिखिए. टू प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ, टेक मिरर इमेज of portion of velocity time graph with respect to time axis which is negative. तो अंतर क्या है? दोनों में थोड़ा सा अंतर है. डिस्टेंस टाइम प्लॉट करने के लिए मुझे किस पोर्शन की भी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी जो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. जबकि स्पीड टाइम में मुझे सिर्फ किस पोर्शन की ही लेनी है? जो कि नेगेटिव है, वेलोसिटी टाइम का नेगेटिव वाला पोर्शन. ओके, आगे बढ़ते हैं. और अब मुझे प्लॉट करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. देखिए हाउ एक्सेलरेशन टाइम विल लुक लाइक. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ.
एनालिसिस आपके पास ऊपर लिखी हुई है। यस, तो आपको दिख रहा है कि फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इज -2, कांस्टेंट है। सो हियर एक्सेलरेशन इज -2, ठीक है। देन फ्रॉम t इक्वल टू 2 to 4 एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। फ्रॉम 4 to 5 एक्सेलरेशन इज -4। डॉटेड लाइंस ग्राफ का हिस्सा नहीं होती हैं, ठीक है। सो हियर आई विल पुट ए हॉलो। अगर आपको नहीं भी ये दिखाया गया है तो भी आप करेक्ट ही मान लें उसे, पर टेक्निकली मुझे दिखाना चाहिए। वाई? बिकॉज एट t इक्वल टू 2 अगर कोई मेरे से एक्सेलरेशन पूछता है, आई कैन नॉट टेल, क्योंकि t इक्वल टू 2 से जस्ट बाद में एक्सेलरेशन 0 है और जस्ट पहले एक्सेलरेशन -2 है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, कि 0 to 2 तक ये फॉलो कर रहा है, फिर ये फॉलो कर रहा है, फिर ये फॉलो कर रहा है। सो आई कैन नॉट टेल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एग्जैक्टली एट 0 और 4, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ आई हैव। आपको ये हॉलो सर्कल्स छोटे छोटे ना भी दिखें तो भी आप उसे करेक्ट ही मान लें, ओके। वेल, सो दिस इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको सिखा दिया कि वेलोसिटी टाइम दिया है तो आप कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट करेंगे, कैसे पोजीशन टाइम प्लॉट करेंगे, और कैसे डिस्टेंस टाइम प्लॉट करेंगे, स्पीड टाइम प्लॉट करेंगे, एंड एक्सेलरेशन टाइम प्लॉट करेंगे। द की इज हियर, understand the motion first, then you will be able to plot it, okay। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस इस पर ट्राई करते हैं। तो आप लिखिए, a body is dropped, और ऐसे लिखिए, a particle is thrown vertically upward, a particle is thrown vertically upwards with 9.8 meter per second, with 9.8 meter per second. Take origin at point of projection and upward direction, origin as point of projection and upward direction as positive, downward direction as negative. Plot displacement time, comma distance time, comma velocity time and acceleration time graphs till the particle returns to the point of projection. Particle returns to the point of projection. तो एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी का वर्टिकल मोशन का केस बनेगा। तो कैसी होती है मोशन अंडर ग्रेविटी? मोशन अंडर ग्रेविटी होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। तो आप पहले मोशन ढंग से समझिए, है ना, और फिर सोचिए कि आप के ग्राफ्स कैसे दिखने चाहिए। सो पॉज द वीडियो, प्लॉट ऑल द ग्राफ्स वट एवर योर माइंड सेज, एंड देन चेक कि करेक्ट ग्राफ्स कैसे दिखेंगे। और आप जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करिए। तो देखते हैं, पहले मैं मोशन समझूंगा। दिस विल बी माय फर्स्ट पोर्शन। जब भी मुझे सिचुएशन दिया और ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल रहा है, आई विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन।
So I am given with some initial speed u. Okay, this is my point of projection. It is t equal to 0 for me. It will go up. Yes, will come at rest, then will come down on the same line. समझने के लिए हम दूसरी लाइन पर देख रहे हैं. It will reach here at the time of flight, t equal to capital T, with the same speed u but downward. Okay, now so ये सारी बातें हम जानते हैं. अब समझिए यहाँ पे, और ये जो इंस्टेंट होगा उसे अपन टाइम ऑफ असेंट बोल सकते हैं. सो दिस इज t1. तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट. चलिए नंबर्स निकाल लेते हैं. तो मुझे u है दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो मैं टाइम ऑफ असेंट जानता हूँ, इट इज u बाई जी. जी आप 9.8 ही यूज कर रहे हैं. सो 9.8 बाई 9.8, सो आई गेट 1 सेकेंड. टाइम ऑफ फ्लाइट is 2u by g, so it is 2 seconds. So I got time of ascent, I got time of, so this number is 1 second after solving I got, and this is 2 second after solving I got. Yes. Now what is maximum height? Let us also calculate that. H max, which is u square by 2g, so I'll have 9.8 का square divided by 2 into 9.8. 9.8 से 9.8 cancel हो जाएगा, or it will come out to be 4.9 meter, the H max. So here the H max is 4.9. मैंने समझ लिया कि मोशन, तो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं. फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 1, velocity is positive and velocity is changing from 9.8 to 0. Yes, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो आपकी कितनी है? 9.8. Here the velocity is 9.8 meter per second. T equal to 1, velocity is 0. And it is motion is uniform acceleratory motion with acceleration is equal to minus of g, और ये उसे g downward. So acceleration negative, क्योंकि मैं downward direction को negative दिया हूँ क्वेश्चन में clearly, upward direction positive, downward direction negative. So that way my acceleration is negative, motion is uniform acceleratory. So I understood this much. So let's begin with the displacement time first. So I am starting from displacement time, and one by one we will understand each graph. So I am starting from displacement time. So here मेरे लिए time axis, this is displacement. We'll start from here. तो displacement time uniform acceleratory motion में कैसा दिखता है? पैराबोला. अच्छा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड. ओके, वेलोसिटी इज पॉजिटिव है, so slope of tangent must be positive. Okay, so I got this parabola like this. कहाँ तक? t equal to 1 तक. Yes, this is 0. this is parabola. आप यहाँ पे कहीं पर भी स्लोप बना के चेक कर ले तो आपको दिख जाएगा कि slope of tangent at any point we are having positive. Can check acute angle. So 0 to 1 का ये बढ़िया हो गया कहानी. अब उसके बाद वही कॉन्केविटी के साथ डाउनवर्ड ही बनेगा पैराबोला, बस स्लोप्स क्या हो जाएंगे? स्लोप्स will become negative. Slope of tangent will become negative. So I'll get this. Here I have 2. This is where my journey ends. So you can check in both the parts. It's a parabola with downward concavity, concave downward. So you can say the acceleration is negative, but tangent here, slope of tangent is positive, slope of tangent is negative. So in this part velocities are positive, in this part velocities are negative, and this number is this is displacement. This number is the maximum height, which is 4.9. Displacement I am measuring in meter, time in
सेकेंड्स। ना कुछ लोग ये बोल रहे होंगे अरे भाई इतना क्यों गया, पैराबोला ही तो बनता है प्रोजेक्टाइल में। वो पाथ होता है उसका। इज इट पाथ? नो, दिस इज नॉट पाथ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। एंड ये भी पैराबोला बन रहा है, ओके, विथ हाउ मच पीक पॉइंट पर पहुंचने पर उसकी पोजीशन 4.9 है, एंड t इक्वल टू 2 पे आने के बाद वापस से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पोर्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब इसी के नीचे मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के बता रहा हूं, और आप ध्यान से देखिए so that you can understand the distance time graph here. So this is my distance time. नीचे तो जाएगा ही नहीं distance time, ठीक है। मैं एक्सेस वगैरह बिल्कुल वैसे ही ले रहा हूं। ये मेरे लिए t इक्वल टू 1 है एंड दिस इज t इक्वल टू 2, ओके। नाउ जहां तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा किसका था, डिस्प्लेसमेंट टाइम का। अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसे थोड़ा छोटा दिखा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। तो मेरे लिए ये डिस्टेंस यहाँ पे 4.9 ही है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको जिस पॉइंट से ये डिक्रीज करना चालू कर रहा है वहां से आपको मिरर इमेज लेनी पड़ेगी। सो विल नीड टू थिंक लाइक दिस। जैसे मैंने ये लाइन बना दी, आप पहले यहाँ पे क्या बना लें, आप पहले यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट ही कर लें डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला। अब इसकी लें मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज जब लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी, यस। एंड दिस पॉइंट will be corresponding to how much distance? This point will be corresponding to distance 9.8. So this is 9.8, okay, and understand this point very well. So what is your distance time? Your distance time is this. ये जो पोर्शन है ये तो मैंने सिर्फ ड्रॉ करने के लिए, समझने के लिए ड्रॉ किया था। डिस्टेंस टाइम इज दिस। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ वी गॉट दिस? डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिक्रीजिंग पोर्शन की मैंने मिरर इमेज ले ली, आप देख भी सकते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 9.8, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, ओके। नाउ द थर्ड आई आस्क्ड द वेलोसिटी टाइम। तो मेरे दो ग्राफ हो गए यहाँ पे, फर्स्ट एंड हियर इज सेकेंड। Third graph which is asked here is velocity time. So see, velocity time, okay, this was distance time. Velocity time तो मैं देख पा रहा हूं कि ये UAM है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक्सेलरेशन कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है, कांस्टेंट है, तो सेम लाइन आनी चाहिए। एंड ऊपर की जो वेलोसिटीज है पॉइंटिंग अपवर्ड, उन्हें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और नीचे जो वेलोसिटीज पॉइंट कर रही है उन्हें नेगेटिव मानना पड़ेगा। सो मान लीजिए ये आपका t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात है, ये t इक्वल टू 2 की बात है, ठीक है। अब देखिए कैसा आएगा, व्हाट इज माय इनिशियल वेलोसिटी? Initial velocity is plus 9.8. So here I have plus 9.8. Final velocity is minus 9.8. Okay. Final velocity is minus 9.8. So I'll get a straight line. I should get a straight line. Slope change नहीं हो सकती उस लाइन की. And at t equal to 1, मेरी वेलोसिटी जो है वो कितनी आनी चाहिए? 0. सो इट्स ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली, और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो आनी चाहिए माइनस ऑफ g के इक्वल, बिकॉज दैट इज एक्सेलरेशन। कोई भी आपत्ति हो आप पूछ सकते हैं। आप चेक करेंगे इस ट्राइंगल का एरिया आपको मैक्सिमम हाइट देना चाहिए, फ्रॉम 0 to 1 का डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका। आप चेक करो, हाफ ऑफ 1 इंटू 9.8 कितना आएगा? 4.9। ये भी आपका 4.9 बट नेगेटिव आएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0। यस। फोर्थ ग्राफ विच आई आस्क इज स्पीड टाइम।
स्पीड टाइम. हाउ विल यू प्लॉट स्पीड टाइम? सो वो समझिए, कुछ नहीं, स्पीड टाइम बिल्कुल किसके जैसे ही प्लॉट होगा, वेलोसिटी टाइम के जैसे ही. यहाँ पे आपकी स्पीड है, दिस इज योर टाइम एक्सेस. अब मैं जानबूझ के नंबर्स वही ले रहा हूं, वैसे ही ले रहा हूं. ये मेरे लिए 1 है और ये 2. अच्छा, जब तक वेलोसिटी ग्राफ पॉजिटिव है तब तक तो कैसा ही बनेगा, जैसा वेलोसिटी टाइम है वैसा ही स्पीड टाइम रहेगा. सो ये यहां से लेके यहां तक का ग्राफ एज इट इज. अच्छा, नीचे के ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे? सिर्फ इतने कि नीचे का ग्राफ यहां कुछ इस तरीके का आ रहा था, जबकि यहां उसी की क्या आ जाएगी, मिरर इमेज. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. जो वेलोसिटी टाइम जा रहा था वो कुछ इस तरीके से जा रहा था, -9.8. यहाँ पे उसी की मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में आई है, टाइम एक्सेस के रिस्पेक्ट में. तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए हमने देखा है. तो ये हमें कौन सा ग्राफ मिल गया, स्पीड टाइम ग्राफ. कैन अंडरस्टैंड द कोरिलेशन इन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड velocity and speed. Then comes the last one, acceleration time graph. Acceleration time graph. और वो कैसा दिखेगा आपको, ये आपका एक्सेलरेशन टाइम 0, 1, 2. अब देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और कितना है, -9.8. सो आई विल हैव ए स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन थ्रू आउट. कोई सर्कल नहीं बनाने हैं क्योंकि यहाँ मुझे एक्सेलरेशन हमेशा कितना दिया हुआ है, 9.8. सो इट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड्स. So you can understand, you can feel how we have plotted this graph in this real time situation. This is displacement, distance, velocity, speed and acceleration. Okay? Area under speed time graph will give you distance. Can add this, कभी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए. Area under speed time gives distance. अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन लिखिए जिसका ग्राफ आप खुद से प्लॉट करेंगे. राइट, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 19.6 meter from ground. A body is dropped from a height 19.6 meter from ground. It strikes ground. It strikes ground and rebounds back to the same height, that is 19.6 meter. Full stop. Taking origin at point of projection. यहाँ पे पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग है, प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे हम. टेकिंग ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग, अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव. प्लॉट फर्स्ट डिस्टेंस टाइम, displacement time, velocity time, speed time and acceleration time graphs. So this is homework for you. Think and plot these graphs. Okay? एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं, लिखिए. From the height of 100 meter, from the height of 100 meter, a particle is thrown vertically upward
particle is thrown vertically upward with 10 meter per second. Okay, and particle B is thrown vertically downward with 10 meter per second. ठीक है, considering all the particles start at same point, considering all the particles starts at same time, and point of projection as origin, upward as positive, downward as negative, plot same graphs, displacement time, distance time, velocity time, speed time, acceleration time for both. तो ये मैंने जो क्वेश्चन कराया है ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है. दूसरा जो मैंने होमवर्क दिया इट इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, और ये थर्ड जो है वो दोनों पार्ट आ गए आपके पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ए हाइट, प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट. ठीक है. एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन जो मैं आपसे होमवर्क में पूछा हूं, इसमें रिबाउंड कंसीडर आपको नहीं करना है, सिर्फ कहां तक ही प्लॉट करना है, ग्राउंड तक पहुंचने तक. ओके, सो थिंक एंड प्लॉट दीज कर्व्स. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.